Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Push Down Automata. यूजुअल नोटेशन के साथ शुरू करते हैं. टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स. पिछले दो सेशन में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा एंड उसके ऊपर पीडीए ने कैसे एडिशनल मेमोरी का यूज किया है. And then we have seen PDA configuration. It's a representation with 7 tuples and different configurations in terms of initial configuration, intermediate configuration as well as final configuration. ये भी पता चला है कि PDA is going to give you acceptance in two different ways. One is final state acceptance, other one is empty stack acceptance. तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं पीडीए का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है एंड विल बी हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द पीडीए. सो ध्यान से देखना है बिकॉज this problem is going to give you a very significant understanding of how PDA works and will be able to relate the previous two sessions with respect to problem solving of your journey within the PDA. So let's go with problem solving of PDA. So this is the first problem that we'll be tackling under push down automata. The problem given to you is we need to accept the language which is a raised to n, b raised to n, where n is greater than or equal to 1. And we need to accept it, we need to solve it with two different approach. One is empty stack acceptance, and other one is final state acceptance. Right. The problem may come in the exam with empty stack acceptance or final state acceptance or both. दोनों का conversion कैसे करना है? I'll mention it during the solving of this. But PDA जब भी हम लोग solve करेंगे, तो we are going to work on 4 different representations of this PDA. And first representations हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे बाय डिजाइनिंग द लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ स्टेट्स एंड ऑल. एंड सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन हम लोग देने वाले हैं दैट इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन. सो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन दैट विल बी गिविंग इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद with the help of delta representation will be forming a state table. And state table form करने के बाद will be forming state diagram. Right. Complete उल्टा approach है of what finite automata. Finite automata में after the discussion and design of a problem, what we have done is state diagram, फिर स्टेट टेबल एंड फिर हैंड रन के रूप में हम लोगों ने डेल्टा ट्रांजिशन देखा. यहाँ पे पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को डिजाइन करने के बाद विल गो विद डेल्टा ट्रांजिशन, उस हिसाब से टेबल बनाएंगे एंड एंड में स्टेट डायग्राम बनाएंगे. देयर इज वन मोर वेरी नाइस नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीडीए एंड दैट इज नोन एज पिक्टोरियल नोटेशंस और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. Right. Most of the books, this pictorial representation is not given, but in our session, we'll be targeting all 4 notations. जब ये as it is a first problem that we know that for the first problem of any entity, we are going to give it in a full descriptive way. जैसे कि आपको इसको थियरी पेपर के आंसर में लिखना है. बट आगे जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो I'll be only focusing on 2 notations. One is delta representations and next one is pictorial representation. Because जब ये दोनों आपको पता है तो very easily you can go on drawing state table notation as well as state diagram notations. तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है and then we'll go towards delta representation as the first notation of solving this problem. So problem given to us is language given is a raised to n, b raised to n, where n is greater than or equal to 1, right? And the language for this is, you must be remembering that this is the first problem of
pumping lemma that we design, right? ऐसे भी कुछ लैंग्वेज है जो रेगुलर नेचर को फॉलो नहीं करते हैं. नंबर ऑफ एज शुड बी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज. तो ये जो है वो हमने पंपिंग लेमा से प्रूव कर दिया था कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज. एंड इसीलिए ये प्रॉब्लम हम लोग CFG का प्रॉब्लम है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, एंड इसका एक्सेप्टेंस देगा PDA. एंड दैट्स व्हाई दिस इज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग, राइट? तो लैंग्वेज देखते हैं. अगर अपने पास सिंगल A है तो अपने पास सिंगल B हो सकता है. 2 times A followed by 2 times B, 3 times A followed by 3 times B. Like that this particular language goes, right? Number of A's should be followed by equal number of B's, right? And we know that PDA can be given as 7 tuple machine, that is Q, sigma, tau, delta, Q0, and we have this as F and Z0, right? जहां पे हमको ये पता है number of states, number of input alphabet, number of stack symbols, delta heart of the machine, then Q0 initial state, F is final state, Z0 is initial stack symbol. तो पहले before moving into number of states required, number of input symbols, number of stack symbol, थोड़ा सा अप्रोच के ऊपर काम करता है, तब जाके आपको पता चलेगा ये 7 टपल्स कैसे बनेंगे, राइट? सो इन दिस केस आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल एज इफ आई हैव 3 A's एंड उसके बाद 3 B's, एंड हाउ आई कैन मैनेज ऑफ एक्सेप्टिंग दिस विद द हेल्प ऑफ PDA एडिशनल मेमोरी, दैट इज स्टैक. तो देखते हैं कैसे करना है. सो इनिशियली आई हैव दिस एज अ स्टैक जिसके ऊपर एक सिंबल है, दैट इज Z0. So what I'll do is, first step, all the A's that I'll come, I'll keep on pushing them onto the stack. So मेरे पास ये पहला A आता है, I'll keep push it onto A. I'll get this second A, I'll push it onto A. I'll get this third A, I'll push it onto A. जैसे ही मुझे पहला B मिलता है, if I get the first B, right, that indicates that number of A should stop. राइट? और स्टैक के ऊपर पुश करना आपने स्टॉप कर दिया. एंड वंस यू गेट द फर्स्ट बी, आपने इस फर्स्ट ए को पॉप कर दिया. वंस यू गेट दिस सेकंड बी, आपने सेकंड ए को पॉप कर दिया. वंस यू गेट द थर्ड बी, आपने थर्ड ए को पॉप कर दिया. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू गेट नथिंग ऑन टू द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग अपना खत्म हो चुका है एंड स्टैक इज एम्प्टी, देन वी कैन से दैट थ्रू एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय PDA, राइट? ओके, तो ये अप्रोच अगर हमको थियोरेटिकली लिखना है तो अपना स्टेप 1 था. स्टेप 1 इज पुश ऑल A's on stack till we get first B, right? Okay, next is step 2. Step 2, for all B's, pop A of the stack, right? And step 3 is, if input string is over, then check stack, and if stack is empty, then word is accepted. Right? So ये 3 steps की जरूरत है. Please see how simple the problem is. जितने भी शुरू में नंबर ऑफ एज आएंगे, हर एज को हम लोग पुश करते जाएंगे, राइट? नेक्स्ट, कब तक पुश करना है? जब तक आपको पहला बी ना मिले, राइट? द मोमेंट यू गेट द फर्स्ट बी, देन ए का पॉप ऑपरेशन शुरू करना है, राइट? हर बी के लिए एक ए पॉप होता रहेगा. जैसे ही आपका स्ट्रिंग खत्म हुआ, आपने चेक कर लिया स्टैक, एंड स्टैक के ऊपर कोई सिंबल नहीं है, मतलब स्टैक इज एम्प्टी एंड स्ट्रिंग इज ओवर, देन यू कैन प्रूव दैट this particular string is accepted with empty stack
acceptance. ये है अप्रोच ऑफ मूविंग टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो अपने को जो सिग्मा है, मतलब इनपुट जो मिलने वाले हैं, those inputs can be, the input can be A, input can be B, and input can be epsilon. Epsilon will be indicating the end of the string, right? Okay, next to that, अपना स्टैक के ऊपर कौन कौन से सिंबल रह सकते हैं? Z0 तो इज ऑलरेडी देयर टू इंडिकेट दैट इट्स एम्प्टी स्टैक, एंड उसके ऊपर सिर्फ हम लोग पुश करने वाले हैं एज को. B will never go on to the stack. So stack symbol में आएंगे अपने सिर्फ Z0 as well as A. And अगर हम लोग इसका तो दोनों का बात कर चुके हैं, अगर हम लोग स्टेट का बात करें तो स्टेट का बात कर रहे हैं तो पहला स्टेप में हम लोगों को एक ऐसा स्टेट चाहिए जो कि सारे एज को देख रहा है, राइट, टिल इट गेट व्हाट फर्स्ट बी. एंड दूसरा एक ऐसा स्टेट चाहिए जहां पे अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं कि हर बी के लिए एक ए को पॉप किए जा रहे हैं, राइट. ओके, फॉर दैट पर्पस वी नीड वन स्टेट. सो दो ही स्टेट में ये पीडीए कैन वर्क एंड कैन बी एबल टू रिजॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम. सो नाउ इस अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू solve it with the help of all four different techniques, that is delta transition, then state table, then we have the state diagram followed by pictorial representation, right? पर ये अप्रोच होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. सो नाउ व्हेन वी रिप्रेजेंट पीडीए, इस पीडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए वी डू हैव क्यू सिग्मा, that is number of states, number of input alphabets, then we have stack symbols, then state transition functions, then we have q0 initial state, final state, and then we have z0, right? पिछले डिस्कशन से ये तो पता चला है कि अपने पास इनपुट अल्फाबेट्स क्या क्या है. सो यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट्स हमको मिल गए, दैट इज व्हाट A as well as B as well as epsilon. Now stack के ऊपर B कभी नहीं जाएगा, will be pushing what is onto the stack. So stack symbol यहाँ पे होंगे. The stack symbol is A as well as what Z0, right? Okay. Now इसको करली ब्रेस से रिप्लेस करते हैं, राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हमको सोचना है अभी स्टेट का. अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो you could be able to see you need one state, that is q0, which is going to push all a's on the stack till you see what first b. तो ये हमको चाहिए एक स्टेट, that is what q0 यहाँ पे, एंड फिर बाकी जो नया स्टेट है वो सारे के सारे 20 देखेगा, उस समय पे सारे एज को वो पॉप करता जाएगा, राइट. सो आई नीड अ सेकंड स्टेट, दैट इज व्हाट q1, you can say over here, which will take care of what all further b's, right. So इस केस में जब आगे बढ़ेंगे तो we could be able to see that q अपने को चाहिए, that is q0 and q1, राइट. तो क्या मीनिंग लिख सकते हैं q0 and q1 के लिए? सो q0 को मीनिंग लिखेंगे, राइट, can see all a's before first b, राइट. आई होप कि ये क्लियर. पहला बी जब तक नहीं मिलता तब तक सारे एज को देखने का काम करेगा q0, एज वेल एज q0 ही अपना क्या है, स्टार्ट स्टेट है, राइट. q1 का जॉब क्या है, कैन सी ऑल बीज आफ्टर फर्स्ट बी, क्योंकि फर्स्ट बी ये देख नहीं सकता, उसको फर्स्ट बी देखने का काम किसने किया है, q0 ने किया है, राइट. कैन सी ऑल बीज आफ्टर फर्स्ट बी, एंड हर बी के लिए वो ए को पॉप करता जाएगा, एंड जैसे ही इसने स्ट्रिंग के एंड को देखा तो ये स्टैक चेक करेगा, स्टैक अगर एम्प्टी है तो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. ये फंडामेंटल इस प्रॉब्लम में, राइट. तो अपने पास दो स्टेट है, दो स्टेट सिग्मा है एंड स्टैक सिंबल मिल गए, तो वी आर रेडी टू गो फॉर व्हाट डेल्टा ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन. नाउ डेल्टा अगर ट्रांजिशन दिखाना है, सो डेल्टा गोज विद मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, मशीन टेक्स द इनपुट, उस टाइम स्टैक टॉप पे कुछ सिंबल है, राइट, स्टैक टॉप सिंबल, एंड उस समय मशीन कैन गो विद टू इश्यूज. One is machine can move to next state and machine can perform certain stack operations, right. Okay, तो ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो, machine is in present state, it takes the input,
मशीन के स्टैक के ऊपर कुछ ना कुछ सिंबल है, वी शुड गो टू द नेक्स्ट स्टेट एंड नॉट स्टैक ऑपरेशन। तो अगर हम लोग Q0 एज अ प्रेजेंट स्टेट का बात करें तो उस समय इनपुट अपना ए हो सकता है एंड वो इनपुट होते समय अपना स्टैक पे ए हो सकता है एज वेल एज Z0 हो सकता है, राइट। तो मेरे अभी दो डेल्टा बनेंगे, एक Q0 इनपुट ए उस समय स्टैक पे ए, Q0 इनपुट ए उस समय स्टैक पे Z0। ऐसे ही Q0 के साथ अगर मुझे इनपुट बी मिला तो मेरे पास दो डेल्टा हो सकते हैं, उस टाइम पे स्टैक टॉप पे ए हो सकता है, उस टाइम पे स्टैक टॉप पे Z0 हो सकता है। उसी तरीके से अगर मुझे Q0 में इप्सिलॉन मिलता है, स्टैक के ऊपर ए हो सकता है, स्टैक के ऊपर Z0 हो सकता है। सो Q0 के मुझे 6 डेल्टा मिलने वाले हैं, 6 डेल्टास, एज वेल एज Q1 के भी उसी तरीके से 6 डेल्टास, टोटल 12 डेल्टा का ट्रांजिशन मुझे लिखना है। सो आउट ऑफ दिस 12 डेल्टा ट्रांजिशंस, इस एग्जाम्पल में मैं सारे के सारे ट्रांजिशन दिखाने वाला हूं, बिकॉज सम ऑफ द ट्रांजिशन मे बी इनवैलिड, सम ऑफ द ट्रांजिशन मे बी गोइंग टुवर्ड्स रिजेक्शन, बट as this is the first problem solving example, I'll be showing you all 12 transitions. ध्यान से देखना है, because that is going to help you to see a very nice approach towards problem solving of PDA. So let's move ahead. तो फॉर द रेडी रेफरेंस आई विल बी राइटिंग देम अगेन। Q अपना है Q0 एंड Q1, सिग्मा अपना है यहाँ पे A कॉमा B कॉमा इप्सिलॉन एंड टाउ, दैट इज स्टैक सिंबल्स अपने लिए है A एज वेल एज Z0, राइट। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट Q0, यहाँ पे लिखूंगा, फिर Q1 के इधर लिखूंगा, राइट। ओके, सो हर ट्रांजिशन लिखते समय, मतलब हर डेल्टा लिखते समय मैं आपको उसका सिनेरियो भी बताता जाऊंगा, सो दैट इट कैन बी अ क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट द सॉल्यूशन कैन बी, राइट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज आई एम into Q0, at that time I receive A and stack top is Z0, right? Okay, ये सिचुएशन कब आएगा, ये स्ट्रिंग आपके पास है, राइट। ओके, अभी मशीन जस्ट शुरू हुआ है एंड यू आर इन Q0, राइट। ओके, सो Q0 ने आपने पहला ए को देख लिया एंड एट दैट टाइम स्टैक इज एम्प्टी। तो क्या करना है, अपने डिस्कशन के हिसाब से इस ए को यहाँ पे पुश करना है, राइट। ओके, तो उसको कैसे लिखना है, एंड स्टे इन व्हाट Q0। सो आपका नेक्स्ट स्टेट होगा यहाँ पे Q0 एंड यू कैन से दैट AZ0। अभी ये क्या लिखा है AZ0, प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे मेरे पास Z0 है, उसके ऊपर मैंने ये पुश कर दिया, राइट। इसको 90 डिग्री में इधर घुमाते हैं तो ये ऐसे दिखेगा मुझे, एंड दैट इज व्हाट इज वी हैव रिटन। सो इसका मीनिंग इज पुश ए, राइट। तो मीनिंग भी अपने को डेल्टा के साथ लिखने हैं, सो दैट द एग्जामिनर विल बी मोर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। थोड़ा इधर लेता हूं सो दैट वी कैन गेट सम स्पेस फॉर मीनिंग राइटिंग आल्सो। सो इसके लिए मैं लिख रहा हूं stay in Q0 and push A, stay in Q0 push A, ये वो सिनेरियो था, राइट। ओके, क्लियर करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, सेकंड डेल्टा ट्रांजिशन कैन बी आई एम इन Q0, मुझे ए मिला है, उस टाइम पे स्टैक के ऊपर अभी ए सिंबल है, राइट। उस समय स्टैक के ऊपर अभी ए सिंबल है, राइट। स्टैक के ऊपर एक तो Z0 हो सकता है या ए हो सकता है। ये सिचुएशन कब आएगा, देखो आपने इस ए को पुश कर लिया है एंड नाउ यू आर इन Q0, ये ए खत्म हो चुका है, आप दूसरे ए को देख रहे हो। सो Q0 यू आर गेटिंग द इनपुट एज ए, स्टैक टॉप पे ए है, इस समय इस ए को भी हमको क्या करना है, पुश करना है, राइट। ओके, वेरी नाइस वर्किंग। सो Q0 ए एंड ए, सो मीनिंग कैसे लिखेंगे, स्टे इन Q0 एंड पुश ए, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट, अभी थर्ड सिंबॉलिक नोटेशन, जब आपको पहला बी मिलेगा, राइट। ओके, तो इसके ए के दोनों डेल्टाज मैंने लिख चुके हैं, बी के अभी दो डेल्टा लिखने जा रहे हैं। तो सिचुएशन देखो, डेल्टा यू आर इन Q0, यू रिसीव बी एंड एट दैट टाइम स्टैक इज एम्प्टी। ये सिचुएशन कब हो सकता है, लेट मी टेल यू, राइट। आपके पास ऐसे है, सारे के सारे बीज है वर्ड में, दैट वर्ड इज नॉट पॉसिबल एट ऑल in the language, and Q0 है and stack top is Z0,
तो यू आर इन Q0, यू आर रीडिंग B एंड स्टैक इज एम्प्टी. व्हाट इट मींस दैट आपका वर्ड B से शुरू हो रहा है जो कि लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है. तो यहां पे लिखेंगे रिजेक्शन, रिजेक्ट. एंड रिजेक्शन का रीजन और इनवैलिड डेल्टा ट्रांजिशन का रीजन यहां पे लिखते हैं. स्ट्रिंग कांट स्टार्ट विथ B. राइट. आई होप कि ये पता चला है. हर ट्रांजिशन के लिए सिनेरियो डिस्कस करके फिर लिख रहे हैं सो दैट अपना आगे का लाइफ बहुत स्मूथ एंड यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ पीडीएफ विद दिस स्पेसिफिक अप्रोच. राइट. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट सिनेरियो. ये कब आएगा? दिस इज वेरी वैलिड वन. फोर्थ वन, डेल्टा Q0 आपने B को रीड कर लिया, उस समय स्टैक के ऊपर A है. राइट. ओके, सो ये सिचुएशन कब आएगा? प्लीज ऑब्जर्व. आपने तीनों एज को पुश कर दिया एंड अभी आप पहला बी रीड कर रहे हो, पहला बी, एंड उस समय टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है. उस समय क्या करना है? आपने पहला बी रीड कर दिया तो पहला आपको अभी ट्रांजिट करना है फ्रॉम Q0 इंटू Q1. ये तो पहला, नेक्स्ट स्टेट अपना Q1 होगा. दूसरा, इस ए को पॉप करना है. राइट. तो अभी देखो, यू आर अलाउड टू सी ओनली टॉप सिंबल. अभी टॉप पे क्या दिख रहा है? ए. ये ए पॉप होने के बाद टॉप पे क्या दिख रहा है? कुछ नहीं. राइट. तो वो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो. सो यहाँ पे आई विल बी एबल टू सी आई एम ट्रांजिटिंग टू Q1 एंड स्टैक टॉप पे ऊपर अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. पहले ए था, इसके इस ए को निकालने के बाद आई डू नॉट हैव एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ द स्टैक. तो जब भी आप पॉप ऑपरेशन करते हो तो दैट इज इंडिकेटेड लाइक दिस. पुश ऑपरेशन करते हो तो दैट इज इंडिकेटेड लाइक दिस. राइट. ओके, सो ट्रांजिट to Q1 and pop A. राइट. ओके, अभी और दो ट्रांजिशंस हो सकते हैं. फिफ्थ वन, डेल्टा ऑफ Q0 इप्सिलॉन Z0. राइट. मतलब ये इप्सिलॉन दो जगह पे आपको स्ट्रिंग में मिल सकता है. एक तो शुरू में कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, दैट इज व्हाट इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज. राइट. एंड हम लोगों ने देखा है कि ये जो लैंग्वेज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस लैंग्वेज में इप्सिलॉन का एक्सेप्टेंस है नहीं, बिकॉज n इज गिवन टू अस बाय n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये जो कंडीशन होगा ये इनवैलिड कंडीशन होगा. राइट. ओके, सो दिस इज अगेन आई कैन से लाइक reject. Right. Why rejection? Because we cannot accept what? Epsilon. Because epsilon does not belong to language. Right. Okay. ये उसका reason है for not accepting that or going towards rejection. Right. Okay. और एक केस हो सकता है, sixth one, delta Q0 and epsilon and उस समय स्टैक पे A है. ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है. ऑब्जर्व कीजिए, अपने पास 2 एज है एंड इसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो रहा है. यू एज्यूम दैट यू आर इन Q0 एंड आपने Z0 के ऊपर पहले ए को पुश कर दिया, दूसरे ए को पुश कर दिया. राइट. ओके, एंड अभी यू आर इन Q0, आपको मिला है स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, दैट इज यू गेट इप्सिलॉन एंड उस समय स्टैक के ऊपर ए है. राइट. तो इस सिचुएशन में आपको पहला बी मिला ही नहीं है. राइट. एंड दैट्स व्हाई यू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. तो ये भी आपका रिजेक्शन है, बिकॉज स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली एज. राइट. स्ट्रिंग में भी है ही नहीं. तो ये हुए Q0 के 6 ट्रांजिशन. ध्यान से देखोगे तो Q0 के 6 ट्रांजिशन में से 3 ट्रांजिशन अपने रिजेक्शन में है. जब हम लोग फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो रिजेक्शन वाले ट्रांजिशंस हम लोग जनरली शो नहीं करते हैं. राइट. ओके, सो दिस इज अबाउट द Q0. लेट्स मूव टुवर्ड्स डिस्कसिंग द ट्रांजिशंस अबाउट Q1. राइट. ओके, सो अभी Q1 के ट्रांजिशंस कैसे होंगे? लाइक लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर. राइट. ओके, सो Q1 के लिए ट्रांजिशंस कैसे होंगे? लेट्स गो विद, आई विल बी गिविंग द नंबरिंग फ्रॉम 7, 8, 9 लाइक दैट. राइट. ओके, सो 7 transitions and this transition is
delta, I'm in Q1, then I receive A, and at that time stack is empty, right? Okay. आप Q1 में क्यों आ चुके हो, ये अगर मैंने क्वेश्चन किया तो आप कहोगे सर हमने पहला B देख लिया इसीलिए हम लोग Q1 में आए। तो Q1 में व्हाट यू एक्सपेक्ट इज ऑल बीज। आपको Q1 में A देखने का कोई हक नहीं है, बिकॉज अगर आप वहां पे A देखते हो तो दैट इज अ प्योर रिजेक्शन। सो Q1 में इनपुट A विल लीड टुवर्ड्स रिजेक्शन। Forget about whatever is there onto the stack, right? क्योंकि ये B के बाद आने वाला A है, which is surely not accepted in the language. So this goes with rejection. Rejection. और एक रिजेक्शन यहाँ पे तुरंत दिख सकता है। प्लीज सी डेल्टा Q1 में A and what A, right? So this also will go for rejection. And इस रिजेक्शन का रीजन, दोनों भी रिजेक्शन का रीजन है can't read A after B, right? Okay. Or can't receive the symbol A after B because language doesn't accept that particular symbol, right? Okay. Abhi next is delta, right? Okay. I'm in Q1. Q1 में मुझे B मिला है, उस समय स्टैक के ऊपर Z0 है। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। ऑब्जर्व कीजिए, मेरे पास दो A's है पर मेरे पास अभी 3 B's है। मेरे पास दो A's है पर मेरे पास 3 B's है, राइट? ओके। एंड आई एम इन Q0। तो इस सॉल्यूशन में ये Z0 है, पहले एक को हमने पुश कर दिया, दूसरे एक को हमने पुश कर दिया, राइट? वंस वी गेट एंड फिर हमको पहला B मिला, सो हम लोग Q1 में आए, Q1 में आए एंड इस B के लिए इस A को पॉप कर लिया। आई होप कि सारे मेरे साथ है अभी, राइट? ओके। नाउ Q1 में ये B आया, आपने इस A को भी पॉप कर लिया और Q1 में ये भी आया, उस समय स्टैक क्या है? एम्प्टी है। मतलब इस B के लिए मैचिंग करने के लिए आपके पास कोई A नहीं है, राइट? ओके। सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल गो टू रिजेक्शन बिकॉज नंबर ऑफ B's आर मोर देन नंबर ऑफ A's। सो यहां पे भी रिजेक्शन है, and this rejection is because number of A's, number of B's you can say are more than A's, right? Okay. और आप ऐसे भी लिख सकते हो number of A's less than number of B's, like that, right? Okay. So ये हुआ अपना थर्ड डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? Q1, राइट? ओके। अभी सोचते हैं और एक सिचुएशन, डेल्टा Q1 में हम लोग हैं, हमको इप्सिलॉन सॉरी हमको B मिला है एंड एट दैट टाइम स्टैक के ऊपर A है। ये तो यूजुअल सिचुएशन है, B मिलता है, स्टैक के ऊपर A है, उस A को पॉप करना है क्योंकि ये B का मैचिंग वाला A है, राइट? ओके। सो पॉप करना है मतलब स्टे इन Q1 एंड pop the symbol of the stack, right? Okay, so this is stay in Q1 and pop A, right? Okay. Now next is number 11, delta Q1, then Q1 के साथ मुझे मिला है इप्सिलॉन, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है एंड स्टैक एम्प्टी है, so this will lead to what? Acceptance, right? Okay. सो ये एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लीज ऑब्जर्व। सो वी राइट इट स्टे इन Q1, डोंट डू एनी ऑपरेशन, नो ऑपरेशन। स्टैक टॉप के ऊपर Z0 था, स्टैक टॉप के ऊपर Z0 ही मिल रहा है एंड दिस इज नोन एज नो ऑपरेशन एंड दिस इज लीडिंग टू एक्सेप्टेंस बिकॉज स्ट्रिंग खत्म हो चुका है एंड स्टैक एम्प्टी है, किसमें? Q1 में, राइट? सो दिस गिव्स मी एक्सेप्टेंस। और एक सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन नंबर 12, डेल्टा ऑफ Q1 में स्ट्रिंग खत्म हो चुका है पर अपने पास एज और भी है, राइट? ए स्टैक के ऊपर है। ये सिचुएशन कब आएगा आप तुरंत इमेजिन कर सकते हो, अपने पास 3 एज है, 2 बीज है, राइट? ये 2 ए 2 बीज के लिए पॉप कर दिए, राइट? ओके। एंड फिर अपने पास ये ए बचा हुआ है किसके ऊपर? स्टैक के ऊपर, एंड स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। सो हियर यू कैन वेरी वेल गेस दैट नंबर ऑफ एज आर मोर देन नंबर ऑफ बीज, राइट? तो ये भी अपने पास क्या होने वाला है? रिजेक्शन, राइट? एंड यहां पे मैं करूंगा नंबर ऑफ एज आर
more than number of Bs, इसकी वजह से ये रिजेक्शन, राइट। ओके, सो ध्यान से देखना है कि ऑल 12 ट्रांजिशंस एंड हाउ नाइसली इट हैज बीन रिड्यूस। हर ट्रांजिशन के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि उसका पॉसिबल सिचुएशन एग्जांपल के साथ क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है। बेसिकली पीपल आर लाइक मोर वरीड अबाउट डिजाइनिंग द पीडीए, पर ये उतना डिफिकल्ट है नहीं। ये एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोगों को रिजॉल्व करना है, राइट। ओके, नाउ लेट मी प्रूव दैट हम लोगों ने जो भी डेल्टा लिखा है वो सारे का सारा डेल्टा अपने पास, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू रिड्यूस दिस एंड लेट मी प्रूव दैट जो भी हम लोगों ने डेल्टाज लिखे हैं वो सारे के सारे डेल्टा विल go towards solving one example, right? Okay, इतने डेल्टा से हम लोग ट्राई करेंगे कि कैन वी गो विथ सॉल्विंग वन एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग सर्टन रूल्स। रूल्स को नंबरिंग दिया है, प्लीज ऑब्जर्व, उस हिसाब से। सो लेट अस गो विथ, अपने पास सपोज आई हैव 3 A's फॉलोड बाय 3 B's एंड इसको मुझे एक्सेप्ट करके दिखाना है, राइट। सो पहला अपना डेल्टा होगा डेल्टा ऑफ Q0, मुझे रिसीव हुआ A, स्टैक के ऊपर Z0 है, राइट। यहाँ पे स्टैक भी ड्रॉ कर देता हूँ Z0, राइट। सो Q0 A Z0, Q0 A Z0, so I need to push that, so I'll be saying stay in Q0 and push that symbol onto the stack। तो मैंने इस A को पुश कर दिया, एक सिंबल अपना खत्म हुआ, राइट। अभी अपना नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट Q0 है, सो डेल्टा ऑफ Q0, मुझे नेक्स्ट सिंबल मिला है A, स्टैक टॉप के ऊपर अभी है A, राइट। ओके, सो ये था पहला इक्वेशन। अभी दूसरा डेल्टा ट्रांजिशन में यूज करने वाला हूं एंड दैट सेज मी Q0 A एंड A, राइट। ये दूसरा A भी हम लोगों ने पुश कर दिया, राइट। अभी नेक्स्ट टाइम थर्ड Q0, वापस सिंबल मिला है A, top of the stack is A, I can still use second delta and here Q0 and A, so और एक A को मैंने पुश कर दिया, राइट। ओके, यहां तक वेरी इजी सॉल्यूशन। नाउ ये 3 एज खत्म हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डेल्टा ऑफ, आई एम इन Q0, आई रिसीव फर्स्ट B, एट दैट टाइम देयर इज A ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, राइट। ओके, तो यहां पे ध्यान से देखो, तो इस समय Q0BA रूल नंबर 4 के हिसाब से आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांजिट टू Q1, सो मेरा अभी ट्रांजिशन होने वाला है Q1 में एंड स्टैक से पॉप ऑपरेशन होगा, तो इस A को मैं निकाल रहा हूं यहां से, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट B के लिए, सो अभी डेल्टा ऑफ Q1 B मिला है, स्टैक के ऊपर A है, Q1 B मिला है, स्टैक के ऊपर A है, स्टे इन Q1 एंड पॉप A, मतलब I'll be staying in what Q1 and I'll be popping A। कौन सा नंबर का रूल है? सो दिस रूल इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 के हिसाब से हमने ये लिख दिया, राइट। ओके, तो इस A को भी मैं पॉप कर रहा हूं यहां से, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। अगेन I'll go with delta of Q1 B and A, right? Okay, again 10 number rule, Q1 and epsilon, right? Okay, so third B के लिए I am able to say that ये A भी पॉप हो चुका है, right? Okay, and now the string is over, so यहाँ पे मिलेगा what? Epsilon, right? So last will be delta of I am in Q1, I get epsilon and stack के ऊपर क्या है? Z0 है। So we can say here that because of rule number 11, no operation wala 11, we can say like it is acceptance, right। I hope कि ये जो चीजें है to write the delta is not bothering you a lot,
राइट आप जब एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करते हो तभी ये चीजें आपको ध्यान में आएंगी। एंड आई एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर कि रिजेक्शन कब कब हो रहा है, एक्सेप्टेंस कब कब हो रहा है, ट्रांजिशन कब हो रहा है, कब पुश ऑपरेशन हो रहा है, कब पॉप ऑपरेशन हो रहा है, कब नॉप ऑपरेशन हो रहा है, राइट। सो ये बहुत बढ़िया चीज है एंड दिस थिंग्स कैन बी टैकल्ड विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल ओनली, राइट। सो ये है अपना डेल्टा ट्रांजिशन, दैट इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीडीए, राइट। सो यहीं पे इस सेशन को रोकते हैं जहां पे हमने पीडीए का पहला रिप्रेजेंटेशन स्कीम देखा, दैट इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन। बट आगे जब बढ़ेंगे हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो इतने सारे डेल्टास को लिखने की जगह पे हम लोग उन्हीं डेल्टास को लिखेंगे जिन डेल्टा की वजह से अपने स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस हो रहे हैं। मतलब रिजेक्शन वाले डेल्टास वी वोंट बी राइटिंग इन अ फाइनल सॉल्यूशन। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट how large the scope of the PDA is, I have mentioned this all delta transition, as well as this must have given you the very good clearance about how to write the deltas. इस हैप्पी नोट के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। अगले सेशन में देखेंगे स्टेट टेबल रिप्रेजेंटेशन, then state diagram representation, followed by one more new notification, that is pictorial representation. So thanks for the watching. Keep studying. Thank you very much.